सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जी। कनहर बूंद बसो रुमावल, कुसुम बसंत गंत न आवै। रव सस किरण उधर सागर कौ, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनियावै। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। आप नारायण कलाधार, जग मह परवरियो। निरंकार आकार, जोत जग मंडल करियो। हाजरा हजूर जहरा सुहूर सर्व कला भरपूर, सुखां दे खजाने दुखां दे मिटनहार, सरवरे कायनात मुजस्मे आबे हयात। पतित नूं पावन करन वाले, बिछड़ियां नूं पार ब्रह्म परमेश्वर नाल मिलाण वाले शब्द गुरपीरा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर अमृत वेले के दीवाना की आप हाजरी भर रहे सो। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अंगद साहब महाराज जी का अभिनंदन पिछले दिनों विच कीता सी। उन्हां दी उस्तत अरदास नूं मुख रखदिआं, अरदास दे बचनां नूं मुख रखदिआं आओ अज धन गुरु अंगद साहब तो बाद गुरु अमरदास महाराज जी की सहायता मंगीए। फिर अंगद ते गुर अमरदास रामदासैं होई सहाय। अरदास दे ए बचन धन गुरु नानक साहब महाराज जी तो उपरंत गुरु नानक साहब नूं ध्याउण दा हुक्म है, अरदास दे विच जिक्र है। और गुरु नानक साहब महाराज जी नूं ध्याए बिना इस धरती ते किसी भी सिख दा बेड़ा इस भवसागर तो पार नहीं हो सकता। जे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी तो अलैदा बाकी गुरु साहबाना की बाणी भी है। गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास महाराज जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन साहब ते नौवें गुरुदेव श्री गुरु तेग बहादुर साहब। पर बाणी उच्चारण तो बाद जद हर एक शब्द का अंत करते हैं तो पदा नानक ही वरतते हैं। भोग नानक जी ते ही पाया जाता है हर शब्द का। ਇਹਦਾ मतलब जोत जिहड़ी गुरु नानक साहब विच वरती वो अगमी है।
ਤੇ ਜਾਮੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਿਗੁਰਾ ਆਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ। ਔਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ। ਆਓ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ 1479 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ, 1479। 10 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਛਾਟੇ ਤੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਸਰਕੇ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ, ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇਵੇਹਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇਵੇਹਾ, ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੋਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਪੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ,
ਉਹੀ ਗੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਬਦਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਏ ਹੋਏ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸਹੁ ਰੁਮਾਵਲ, ਰੁਮਾਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਬੂੰਦਾਂ ਗਿਰੀਆਂ, ਕਨਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਕਨਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਵ ਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਮਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਨੇ 100,000 ਮੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਣ ਸਕੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮਿਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਭਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਣ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਾਸਰਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੀਏ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਬਾਸਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਝੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਕਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ? ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਥਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਿਗੁਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਮਨ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ।
बस कोई सच्चा किरसान गुरु नहीं मिलिया जिन्हें इस मन उपजाऊ धरती ते बीज छिड़काउण दा यतन करना हो। इस तो मांझे सन मन च तीर लग्या ते कई थोड़े क दिनां बाद इतिहास कहंदे कि घर दे विच विहड़ा सांझा है जिथे धन गुरु अमरदास जी दे भराता भी रहिंदे ने ते उन्हां दे घर धन गुरु अंगद साहब जी दी धी राणी विआह के आई है नूंह बन के ते वो अमृत वेले रिड़कना करदी है। ये लफ्ज़ भी साडे रिड़कना करने असी के रिड़कना या रेड़का पाउणा, ये लफ्ज़ बड़े पुरातन ने, साडे बच्चियां नूं नहीं कंठ। हाँ, तुहाडे कई बजुर्गां नूं ये लफ्ज़ तुसीं सुने होणगे ते तुसीं इहदे अर्थ भी जाणदे हो। रेड़का पाउणा भावें कि अज जे डिक्शनरियां चक के पढ़ोगे कि रेड़का पाउणा की हुंदा है तो पंजाबी इंग्लिश की डिक्शनरी च ट्रबल मेकर ही मिलेगा कि जेड़े बने हुए काम नूं बिगाड़दे उहनूं कहंदा रेड़का पाउणा। पर असल दे विच साडी ये पुरातन शब्दावली विच रेड़का पाउणा हुंदा है कि सवेरे उठ के दुध जाग ला के जाग लगे दुध नूं भाव दही नूं रिड़क के उहदे विचों मक्खण कढना, इहनूं कहंदे रेड़का पाउणा। ये रेड़का पाउण दा नेम नित दा सी घरां दे विच साडे पिंडां दे विच ते अज भी है। अज भी दास जद पंजाब विच विचरदा है कई घरां दे विच बिल्कुल जिहड़े पिंड धरती नाल हजे भी जुड़े हुए ने, बिल्कुल जमींदार वाले ने, जमींदारी करते हैं, वो हजे भी अमृत वेले उठ के रेड़का पाउंदे ने। वो परिवार भावें सारियां गल्लां पंजाब विचों भी दूर हो गईयां ने, अजकल मिक्सियां आ गईयां, टूल्स आ गईयां, बटन दबाया गुर्र करके सब कुछ बनाया तो परां कीता, पर एक जुगत सी। और इस रेड़के पाउण नूं धन गुरु नानक साहब ने नाम जपण दे तुल आख्या कि हर कोई रेड़का नहीं पा सकदा कि मधाणी दे उत्ते रस्सा वलेट के ते उस रस्से दियां ईटियां नूं फड़ के बिना किसी सहारे नूं मधाणी नूं रिड़कना भी एक कला है। जिस तरह हर कोई मधाणी नहीं रिड़क सकदा ते इसी तरह हर कोई सिमरन भी नहीं कर सकदा। गुरु नानक साहब ने सीधी गल कीती, ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद ना आवे, रसना नाम जपो तब मथिए इन विद अमृत पावो। जिन्ना चिर तक सुवाणी रेड़का करदी है ते ओदी नज़र मधाणी तो नहीं हटदी। जे मधाणी दी टीसी तो मधाणी दे उत्ते दी चुंझ तो नज़र हट जाएगी फिर वो पाए जाने वाला रेड़का थिड़क जाएगा और रस्सी निकल जाएगी। बस एडी क बरीकी है कि जे मधाणी तो नज़र गई हटी फिर हत्थां दा बैलेंस बिगड़ जाएगा। इनू गुरु नानक साहब कहते कि जे सुरत शब्द तो थिड़क गई फिर कीता होया सारा सिमरन भी थिड़क जाएगा, मन थिड़क जाएगा। ए मन ईटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद ना आवे। नींद आउण दा जिक्र इसलिए कीता है क्योंकि भलके कोई भलका वेला कहंदा है, सवेर वेला कोई अमृत वेला। अक्सर मिधाणियां रिड़का पाउण वास्ते नींद भी आ जाती सी सोहणियां नूं, क्योंकि वो वेला ही नींद दा सी, असर दा सी। क्योंकि पौ फुटाले तो पहला ते इहदे नाल ही सिमरन दा जिक्र पौ फुटाले दा कीता है कि गुरु के सिखा जे कुछ प्राप्त करना है, जे अपना जीवन भी तब्दील करना है, तो जे किसी दे जीवन ते भी असर पाउणा है। सच्ची गल है, असी कह के 100 वारी चले जावांगे पर साडा क्या भी किसी नूं तब्दील नहीं कर सकदा जे साडा भी जीवन ना हो। जीवन तो बिना किसी विच तब्दीली नहीं आउंदी। भावें असी पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, जो मर्जी कर ली। असी न्योली कर्म का भी जिक्र किया, जिन्ना मर्जी असी शरीर नूं साधन का यतन कर लीए, जे मन ना साधिया गुरु के हुक्म अनुसार फिर गुरु अमरदास जी कहते हैं ये सब निफल है। और यही कबीर साहब का शब्द असी पढ़ते हैं, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई जाओ, सहज ना मिले सोई। अज पाठ तो बहुत हो रहे हैं, अज बहुत अज तो कट्ठे कट्ठे अखंड पाठ 100 भी हो रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ना करो, पर चंगा तो यह है कि संगत आप मिल के 100 अखंड पाठ कट्ठे करे, कि 100 घर दे जी कट्ठे हो जाण जी। असी सारे कट्ठे करते हैं, सारा परिवार। क्योंकि ये गल मैं तुहानूं अपने निजी अनुभव विचों दसां, हर साल बैंकॉक दे विच सिंह सभा गुरुद्वारा जिहड़ा अपना बैंकॉक दे विच है, फॉरट जिन्हों कहिंदे हैं, बिल्कुल बैंकॉक का केंद्री सिंह सभा जिन्हों सब तो पुराना सिंह सभा गुरुद्वारा वड्डा गुरुद्वारा कहिंदे हैं,
ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਪਰਾ ਤੋਂ, ਸੁਖਮਵਿਤ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਠ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ कि क्या पढ़ी है, क्या गुनी है, क्या वेद पुराना सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई। तो कबीर साहब हुण सहज की है? इस सहज का उत्तर देण वास्ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने आनंद साहब विच दस्या कि आनंद की अवस्था सहज तो बिना नहीं पैदा हो सकती, ते सहज उहदे मन विच पैदा होएगा जिहड़ा गुरु का भाणा मन्नेगा। ते गुरु दे भाणे मनण तो बिना सहज पैदा नहीं हो सकता। एक शब्द सहज, जो सहज ना मिलियो सोई, हर का नाम ना जपस गावारा, क्या सोचा है बारंबारा। उसी गल नूं धन गुरु अमरदास जी ने करमी सहज ना उपजै, विण सहज है सहसा ना जाए, न जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो, मन धोना जरूरी है। भांडा मैला होए तो दुध नहीं पैंदा, ते मन मैला होए ये अमृत किवें पै जाएगा? जिस अमृत की सार हर कोई नहीं जान सकता। भांडा धोए बैस धूप देवो, तौ दूधे को जावो हो, दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमावो। जपो हो त एको नामा। अमृत वेले रिड़का पाउण दे मर्यादा नूं जां घर दे नियमां नूं सतगुरु गुरु नानक साहब ने अमृत बाणी, अमृत वेले दे सिमरन दे नाल तवज्जो दित्ती है कि सिखा अमृत वेले सिमरन जरूर करें। बाणी पढ़नी मुबारक है, पर बाणी पढ़न तो बाद घड़ी जां पल जां छिन चौकड़ा जरूर लाई, सिमरन जरूर करें। और उस वेले कोई सोदर का तो जिक्र नहीं है, कोई जप बाणी का भी जिक्र नहीं आया, कोई होर किसी बाणी का जिहड़ा असीं बाणी आरती का जिक्र करते हैं जां होर शब्दां दा, वो शब्द ने जिहड़े बिल्कुल अलग ने। कि इहदा मतलब जिस वेले बीबी अमरो जी रेड़का पा रहे ने वेड़े विच बैठ के, ते उस वेले जिहड़ा शब्द पढ़ रहे ने, ना वो जपजी साहब है, ना सोदर है, ना वो आरती है, ना वो आसा की वार है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। दास अक्सर ये बेनती करता है, भावें साढ़े कोल मोबाइल फोन आ गए, सब कुछ आ गया, डिवाइसिस आ गए, बड़ा कुछ साढ़े लिए सौखा हो गया, पर गुरु के सिखो एक शब्द एक महीने का जरूर कंठ करो, घटो घट एक शब्द एक महीने का जरूर कंठ करो। मैं तो इत्थों तक कोई प्यार वाले रागी सिंह भी मिलन तो उन्होंने भी आप भी कंठ करने का यतन करीदा, तो उन्होंने भी बेनती करीदा कि भाई तुसी तीन हो, कोई एक एक पदा ही तीनों रल के कर लो, तो किन्ना एक शब्द तिन्नां नूं रल के याद हो जाएगा, तो साल दे विच किन्ने शब्द याद हो जाए। बाणी इसलिए कंठ करनी है कि कंठ कीती हुई बाणी शरीर ते जिंद दे जी दे नाल निभदी है, ते जिहड़ी चीज़ जी दे नाल है उन्हों ना कोई चोर चोरी कर सकता है, ना उन्होंने कोई कटार वढ़ सकती है, तो ना उन्होंने कोई खत्म कर सकता है। गुर का बचन बसै जी नाले, ये बचन जे कंठ होएगा, बाणी कंठ होएगी, ये ताइयों हिरदे विच बसेगी, ताइयों नाल निभेगी। बाणी कंठ कीती हुई शब्द सारा दिन विचरन का आनंद हो रहा है। कोई भी एक शब्द की तुक दे विच तुसीं विचरो तां भी आनंद है। कोई एक मन बहुत बेईमान है गुरु के प्यारिओ,
इस मन नूं ते जोड़ना इस पासे। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने शब्द सुनिया कि काया आरण मन विच लोहा पंच अगन, क्योंकि इहदे विच जिक्र है रे चित चेतस कीना बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ठीक है, बंदा कहता नहीं मेरे कोल वेला नहीं, मेरे कोल समा बाणी पढ़न दा, ते गुरु नानक साहब अगों ये गल कहते जे तू बाणी नहीं पढ़ेगा तो याद रखी जिन्ना मर्जी फल फुल जा, जिन्ना मर्जी सियाणा ते चतुर हो जा, अंदरों तू सड़ जाएगा। उस वाहिगुरु दे गुण बिसरन दे नाल ही तेरे अंदर सड़ना साड़ा शुरू हो जाएगा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, तेरे अंदर दे गुण गलणगे। तीन पदे देखो जे आसा की आवाज दे विचों लईए, पहले तीन पहली पौड़ी दे नाल लगे हुए सलोक। पहला है महाराज जी कहते बलहारी गुर अपने देवहाड़ी जिन मानस ते देवते की ये करतना। ये फिर नाल देखो ये सारे जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुरबिन। ते तीजा नानक गुरु ना चेतनी। किड्डी गहर गंभीरता है कि सब कुछ तेरे कोल है, सारी समर्थ है, सब कुछ कर रहे हैं, पर तू गुरु चेते नहीं कर रहा। तो असी कह देते हैं किसी वेले भी कर लिए, नहीं। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। दो बारी गुरु रामदास जी ने इको शब्द विच दो बारी क्लीयर किया, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सु भलके उठ। हुण भलके दे बड़े अर्थ होंदे ने। साडी पंजाबी विच लंघे होए कल नूं भी कई भलके कहिंदे ने, कई हुण माझा मालवा दुआबा इन्हां दे अर्थ वखरे ने, कई अखरां दे कई लफ्जां दे। भलका चढ़न वाला दिन भी भलके होंदे है, ते कई लंघण वाले दिन नूं भी भलके कह दिंदे, जिहड़ा कल लंघ गया उहनूं भी भलके कहिंदे आ। ते जिहड़े ये भलके दे अर्थ करदे आ लंघे होए दिन बाणी पढ़ो, फिर मन च शंका हो जाएगी ना गुरु रामदास की कदी भी पढ़ लो, जिस वेले पढ़ लिया उही वेला अमृत। पर नहीं, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सु भलके उठर नाम ध्यावै। अगला वचन उदम करे भलके। ये भलके लंघिया होया कल नहीं, ये प्रभात सूर्य उदे वाला है, प्रभात वाला है। तां धन गुरु रामदास जी ने ये दूसरा अखर नाल वरतिया कि मन च शंका ना रह जाए। इवें जे शब्द नूं एक एक अखर ये रोज़ पढ़ीदा सी शब्द कई बारी, पर पिछले दिनों च जद पढ़िया तो हैरान हो गया कि गुरु रामदास जी ने किवें कमाल एक बचन नाल ला दिता कि उदम करे भलके प्रभाती। प्रभात नाल ला दिता कि प्रभात का मतलब ही अमृत वेला है। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृतसर ना। खैर, गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु अंगद साहब जी की धी राणी तो ये बचन सुने, मन विच तीर वजिया। पुछया बच्ची ये इल्हाम ये कलाम किदा है? ते दसिया ये मेरे पिता जी धन गुरु अंगद साहब महाराज जी जिस गद्दी ते बैठे ने, जिस जोत दे वारिस ने, उस जोत दे मालक धन गुरु नानक साहब जी दा है। ते गुरु अमरदास जी कहंदे उस मालक दे दीदार मैं भी करने ने, पर कहंदे कि हुण गुरु नानक साहब जी शरीर विच मौजूद नहीं। जे गुरु नानक साहब जी दी जोत दे दीदार करने ने ते पिता धन गुरु अंगद साहब महाराज जी खडूर दी धरती ते ने। हुण इहदा ये मतलब नहीं कि इस तो पहला गुरु अमरदास जी ने कदी गुरु अंगद साहब के दर्शन ना किए होण। इहदा ये मतलब नहीं कि कदी गुरु अमरदास जी नूं ये ना पता होए कि गुरु अंगद साहब की अजमत कितनी वड्डी है। इहदा ये भी मतलब नहीं कि धन गुरु अमरदास जी ने कितने पहली बार ही वो बाणी कन्ना चों सुनी होएगी जिहड़ी बीबी अमरो जी, जां पहली बारी रेड़का थोड़ी दे रहे सन बीबी अमरो। इहदा जिक्र भी, इहदी शंका भी गुरु अमरदास जी ने अपनी बाणी आनंद साहब विच कढ दित्ती कि कुटुंब विच रहिंदियां असी कई बारी एक दूसरे की परख नहीं कर पाउंदे। कई बारी पति नूं नहीं पता हुंदा कि पत्नी की अवस्था किन्नी है बंदगी दे विच। कई बारी नाल रहण वालियां नूं पत्नी नूं नहीं पता हुंदा पति किन्ना है। सके भरावां नूं भरावां दी अंदर दी अवस्था दा नहीं पता हुंदा। इहदा जिक्र सतगुरु जी ने जिहड़ी राती असी विचार कीती है ना, असी आ 11वीं 12वीं आ सारियां पौड़ियां इस गल नूं आनंद साहब दी कि मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एक कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही
तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही, तिस नाल क्यों चित लाइया, ऐसा कम मूले ना कीचਿਆ जित अंत। हुण इस तो अगले पदे दे विच असीं पढ़ांगे अगम अगोचरा तेरा। इहदे विच महाराज जी ने स्पष्ट किया है कि अगम अगोचरा तेरा, अंत ना पाया, अंत ना पाया किन्हीं तेरा, अपना आप तू जाने, जी जंत सब खेल तेरा। क्या को आक वखाने, ये नहीं किया जा सकता कि किस वेले पहला भी गुरु अंगद साहब के दर्शन किए होंगे, जिस वेले अमरो जी नूं बीबी अमरो जी नूं लैके आए ने विआह के, उस वेले भी तो खडूर साहब गए होंगे गुरु अमरदास, बाबा अमरदास जी, ऐसी गल तो नहीं है। पर बाबा अमरदास जी ने इको गल स्पष्ट की गुरु साहब ने कि जिन्ना चिर तक पार ब्रह्म परमेश्वर की बख्शिश ना होए, जिन्ना चिर तक समा ना आया होए, उन्ना चिर तक पई हुई सामने वस्तु भी नहीं दिखती। सामने पए हुए हीरे माणक भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता जिन्ना चिर तक वाहिगुरु का हुक्म नहीं है। जी जन सब खेल तेरा, क्या को आख बखाणे, आखे तां वेख्या सब तू है, जिन जगत उपाया। इस करके कह नानक तू सदा अगम है तेरा। हुण अगे जिक्र किया सुर नर मुनजन अमृत खोज दे, सु अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा की, कृपा बड़ी वड्डी दात है। सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुधी उपाए, एक वेख सारे नहीं आ सकते, सारे वेले नहीं अगे। वो भी समा नियत है गुरु अमरदास जी, जिस समय दे विच प्रभु की बख्शिश होनी है, तो जिस समय दे विच अंदरों कणी पैदा होनी है, तो सामने दिसदी हुई चीज़ की भी कीमत पैनी है। बिन गाहक गुण बेची है, तह गुण तौ गुण सैगो जाए, गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख विखाए। ओही ने बाबा अमरदास जी, उन्नी ओही अवस्था है, ओही घर दे विच नूं राणी बीबी अमरो है। पर पहला मन गाहक नहीं सी, मन विच अणियाला तीर वजिया कि निगुरे का है नाउ बुरा। उस अणियाले तीर ने फिर सब कुछ, वो जिहड़ा गाहक नहीं सी गुणा दा, उन्होंने गाहक बना दिता। एक वेख परसन आया दा मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं है कि ये दात सारिਆਂ ਨੂੰ मिल जाए, सब वेले मिल जाए, नहीं। ये जद धुर कर्म जिना को तुद पाया, ता तिनी खसम ध्याया, इन्हां जनता कै वस किछ नहीं। इहदे असी कहिए असी जप सकीए, असी कर सकीए, ये स्पष्ट है। इन्हां जनता कै वस किछ नहीं, सब देखी ये सारा उदा ही है। इन्हां जनता कै वस किछ नहीं, साढ़े वस कुछ हो ही नहीं सकता कि असी ध्या लीए, असी जप लीए। इस करके गुरु अमरदास महाराज जी ने उस वेले कहा कि बीबी अमरो जी सानू भी लैके चलो। बीबी अमरो जी नाल गए ने, ते यक लखत गुरु अंगद साहब जी देख के हैरान होए कि बिना चिट्ठी पत्तर, बिना सनेहे तो तुसी वापस किवें आ गए धी राणी जी। उन्होंने कहा बीबी अमरो जी ने, मैं कली नहीं आई, मेरे नाल बाबा अमरदास जी आए ने। ये लफ्ज़ वरते इतिहास के विच, मेरे नाल ताया सोरा साहब आए ने। कहंदे किथे ने? कहंदे जी वो बाहर बैठे ने। तो गुरु अंगद साहब कहंदे उन्होंने अंदर क्यों नहीं लियाए? कहंदे वो आए नहीं। इतिहास कहंदे धन गुरु अंगद साहब जी ने ओढ़ी हुई लोई चद्दर विचों दोहे बाहां कड्डियां, ते बाहां कढ़ के बिल्कुल धन गुरु अंगद साहब जी उम्र विच छोटे ने, ते गुरु अमरदास बाबा अमरदास जी 25 साल वड्डे ने। धन गुरु अंगद साहब महाराज उन्होंने लैण वास्ते हथ फड़ के गलवकड़ी पाउंदे ने, पर धन गुरु अमरदास बाबा अमरदास गलवकड़ी नहीं, वो गुरु अंगद साहब जी के चरणों वल नतमस्तक होंदे ने, अपना सिर गुरु अंगद साहब के पैरों में रखते हैं। यह है समा, ये जिस वेले साडे जीवन में हनेरा दूर होएगा ना, अज भावें असी बद्दा चट्टी सतगुरु अगे नतमस्तक भी होंदे आ, सिर भी झुकाउंदे आ, बाणी भी पढ़दे आ, असी गुरु दे नाल इतफाक भी रखते हैं, सत्कार भी रखते हैं। पर सच्ची मुच्ची जिस दिन अणियाला तीर इस बाणी का लग जाएगा, उस दिन पढ़ी हुई बाणी ते गुरु नूं वेखण दा नज़रिया सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। अज असी भावें बद्दा चट्टी कर रहे हैं, पर उस दिन साड़ी जिंद जान ये शब्द हो जाएगा।
उस दिन साडा एक पल एक बिंद भी नहीं सरेगा। एक घरी दिनस मुको बहुत दिहारे, मन ना रहे कैसे मिलूं प्यारे। ये अवस्था पैदा होएगी गुरु अमरदास जी दे अंदर, ये अवस्था पैदा हुई जिन्हों गुरु अर्जुन साहब कहते मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे। पर सानू तो बड़ी सोहनी नींदरा आंदियां ने। हाँ असीं इन्ने सुते होंदे हां कि सानू गुरु का भी चेता नहीं रहिंदा उठ के जाग के। पर सतगुर कहते मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे। यह है अंदर दे गाक वाली अवस्था, कोई किसी विरले ते हुंदी। मैं कोई उपदेश नहीं दे सकता गुरु प्यारिओ, ये गल्लां मैं अपने आप नूं भी सुना रहा कि असीं भी उत्थे हां, असीं किसी नूं नहीं दस, आप संगतां नूं ते बिल्कुल भी नहीं। पर जिहड़ी अवस्था गुरु अमरदास जी दे हिरदे विच वरती, एक साल नहीं आए साल 12 साल सेवा कीती ते हर साल गुरु अंगद साहब जी ने सरोपे की बख्शिश की। थां भावें गोइंदवाल उस वेले वसिया नहीं, बनिया नहीं, पर गुरु अंगद साहब ने इशारा करता सी। खडूर साहब की धरती तो गोइंदवाल साहब की धरती जिथे ब्यास वगदी है उथे तक जाना। पर जद भी अज भी तुसी जाओगे, खडूर साहब ते गोइंदवाल साहब के विचकार एक थां है, बिल्कुल विचकार अध रस्ते दे विच उस गुरुद्वारा साहब, उस थां का नाम है दमदमा साहब। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी पैर रात रहिंदी नूं गागर लैके तुरदे सन। वो जिहड़ा दमदमा साहब का थां सी उत्थे रुक के इतिहास ये कहंदा है, जिहड़ा मैं पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ कि दमदमा साहब ਦੀ उस पावन जूह ते रुक के, भावें उस वेले कोई थां नहीं सी, भावें कि वो कोई गुरुद्वारा नहीं सी जां कोई धर्मशाल नहीं सी, एक थां ही सी जिहड़ी नीयत सी। हो सकदा वो रुख ही होए, रुख दे थल्ले बहिंदे होण, हो सकदा वो कखां दी कुली होए, उथे हो सकदा वो छपरी ही पई होए, ਉਹਦੇ बारे कोई इतिहास का जिक्र नहीं। उथे रुक के जप बाणी का पाठ करना, फिर उठ के ब्यास विचों गागर ते गागर भरन का भी जिक्र कि एक बारी गुरु अमरदास जी के मन में एक ख्याल आया कि पहला मैं इशनान कर ला, इशनान करके फिर गागर भरा, फिर लैके जावां। कई साल इउं कीता। फिर मन में शंका आई कि मैं गुरु तो पहला किवें इशनान कर सकदा। फिर मन में ये शंका, क्योंकि फिर गागर भरनी, फिर गागर भर के फिर इशनान करना तो फिर लैके जाना। फिर मन च शंका आई कि बिना इशनान मैं गागर किवें भरा। इतिहास इत्थों तक लिखते। फिर तीसरा मन च ख्याल आया क्यों ना सिर ते गागर सने ब्यासां विच वड़िया जाए, सिर सने इशनान भी होए ते नाल गागर भी भरी जाए। इनू इतिहास लिखते हैं कि बाबा अमरदास जी ने जिहड़ा सेवा का सिखर किया, सिर सने गागर ब्यासां विच जांदे सन। सने गागर ब्यासां विच चुब्बी ला के, चुब्बी भी लाई तो जिन्ना चिर तक गागर भरदी नहीं तो उत्ते नहीं आउंदे सन, भर के तो फिर इक्को बार बाहर निकलते सन। ये सच्ची मुची उभी सेव है, ये अलूणी सिल चटना है गुरु प्यारिओ। ये सेवा इस करके गुरु अमरदास महाराज जी का ये भी बचन असी पढ़ते हैं कि सच्चे पातशाह कहते हैं सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। ये गुरु अमरदास जी का बचन है कि सतगुर नूं मनाउण वास्ते है ये सेवा। अपना रांझा राजी करना नहीं, दुनिया नूं दिखाउण वास्ते नहीं, दूजियां नूं खुश करने लई नहीं, सिर्फ एक मकसद है जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसम्मल भन्ने। कला एक गागर का इशनान नहीं, गुरु अमरदास जी कहते मैं गुरु अंगद साहब का इशनान कराउना, पर सच गल यह है गुरु अंगद साहब के कराए इशनान नाल पाप मेरे धुलते हैं। एडी वड्डी गल है। इशनान कहते बाबा अमरदास गुरु अमरदास जी का कराउंदे है, पर मन च ये इच्छा है कि इशनान गुरु अंगद साहब का है शरीरिक, पर पाप मेरे मन के धुल रहे हैं, मेरे अंदर की मैल धुल रही है कि जहाँ सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल भन्ने। उपदेश ये दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का भाना ये सहज है। गुरु अमरदास जी के जिन्ने शब्द तुसी हर अंग ते जिथे गुरु अमरदास जी का शब्द होएगा, बाणी होएगी, एक गुरु अमरदास जी की बाणी विच बाणी का जिक्र जरूर होएगा, शब्द का जिक्र जरूर होएगा, ते दूसरा भाने का जिक्र जरूर होएगा।
गुरु अमरदास जी के संपूर्ण 17 रागां दी बाणी विचों कोई विरला टावा एक ऐसा शब्द होएगा जिथे शब्द ते भाणे का जिक्र ना होए। नहीं तो तुसां सारियां ने सहज पाठ के दिनां दे विच ये सारी बाणी के दीदार कीते ने। तुसीं जाणदे हो कि गुरु अमरदास जी की बाणी विच बाणी का किन्ना किन्ना जिक्र है, किन्नी उस्तत है। इनू क्या उपदेश दिता सतगुरु तिन सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवगन वन्ने। यह चाल निराली गुरमुखी, गुर दीख्या, दीख्या कहते उपदेश सिक्ख्या जिहड़ा गुरु ने आख दिता वो मनना ही मनना है। उन्होंने मन के मन सुक्का ना जाए, मन उसी थी वंज पे, उसी थां ते इशनान करे। इनू क्या जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवगन वन्ने। यह चाल निराली गुरमुखी, गुर दीख्या सुन मन भिन्ने। सतगुरु गुरु अमरदास जी ने 12 साल सेवा की। हर साल ਸਰੂਪਾ मिलता सी गुरु की बख्शिश। सिरों पाओ, सिर तो लैके पैर तक, भाव कि सारा ढकण का एक कपड़ा जिन्हों सिरों पाओ पुराने समय च कहा जाता सी। सिर तो लैके पैर तक प्रेम पटोला तह शह दिता ढक्कन को। जहाँ असी ये बचन पढ़ते हैं, हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान मैं दाजो, हर कपड़ा हर भोजन देवो जित सबरा मेरा। वो कपड़ा भी सिरों पाओ है बाणी दे विच। ये कोई 1.5 सवा 2 मीटर असी कपड़ा कह देंगे बना के दे दिए परना खट्टे रंग का, पर असल विच बाणी दे विच जिहड़ा सिरों पाओ है जां सिख इतिहास गुरमत दे इतिहास गुरु इतिहास विच सिरों पाओ है, वो 12 सिरों पाओ 12 साल धन गुरु अंगद साहब जी ने बाबा अमरदास नूं दिते। ते 12 साल जब संपूर्ण होण लगे, सर्दियां दे दिहाड़े मींह पैंदा सी, वो गागर ढो के आउंदे सन ते एक धोबी दी बार खड्डी सी कुल्ली दे बार, उस खड्डी दे नाल पैर टकराया ते गागर डिगी है ते अंदरों आवाज़ आई है कि ये अमरू निथावा ही होना है, कि घर बार छड्ड के अपने पुत्रां धीआं दा अपना घर छड्ड के ते कुड़मा दे घर आके रह रहा ते खा रहा। उन्हें कहा ये निथावा अमरू होएगा, पर गुरु अमरदास जी ने कहा वे चलिए ये गल ना कह, सब कुछ तू मैनू कह लै, पर निगुरा अज बाबा अमरदास नहीं है। अज बाबा अमरदास अमरदास कोल सच्चा गुरु गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब जी की टेक है। वो झली भी हुई इतिहास के विच जिक्र है। धन गुरु अंगद साहब ने उन्होंने बख्शिया। ये 3 गल्लां इतिहासकार लिखते हैं। खड्डी दे नाल पैर टकराया, खड्डी नाल अड़ के डिगे ने ते खड्डी गद्दी तक लैके गई। टहल कमाई ते गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक साहब दे महल की बख्शिश की। किड्डे कमाल दे बचन, खड्डी तो गद्दी, टहल तो महल ते एक बख्शिशा नहीं, फिर 12 बख्शिशा 12 साल दियाँ। तुम हो निमानण के मान, कर हूँ निथावण को थान, न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे, गई बहोड़ बंदी छोड़। ये सारा जिक्र किया कि जिदा कोई नहीं, नि धिरियां दी धीर, नि धीरियां दी धीर, नि पीरियां दी पीर, सब कुछ क्या कि सच्चे पातशाह गुरु अंगद साहब जी ने सारियां बख्शिशां झोलियां पाइयां ते सत्ता बलवंत नूं कहना पै गया, पिऊ दादे जे विहा पोता परवान। ये परवान चढ़े ने, ये एवें नहीं, ये 12 साल की घालना करड़ी सेव कमा के ते जिस वेले धन गुरु अंगद साहब जी ने गुरु नानक साहब जी की गद्दी का वारिस बनाया, मालक बनाया, उस तो बाद फिर एक नहीं 17 रागां दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी ने बाणी उचारी। ते 17 रागां तो उपरंत भी राग रहत जिहड़ी बाणी है, सलूक वारां ते बदीक दा जरूर जिक्र करिए। असी जिक्र करते हैं कि धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने बाणी के संपादन का कार्य किया, पर सच तो यह है बाणी की संपादन के कार्य की शुरुआत सब तो पहला गुरु अमरदास जी ने शुरू कर दी सी। ताइयों बाबा कबीर साहब जी के सलूकों नाल गुरु अमरदास जी के सलूक मेहंदी घर के घालिया, जिहड़ा सलूक है कबीर साहब का आप पिसाए पिसाए वाला, उहदे विच गुरु अमरदास जी का सलूक अगे गुरु अमरदास जी ने पाया। बाबा शेख फरीद के किन्ने सलूक ने,
बाबा शेख फरीद जी के सलोकां दे नाल धन गुरु अमरदास महाराज जी ने सलोक पाए कि कोई ये चिट्टी दाड़ी हो जाए तो वह रब की बंदगी नहीं कर सकता। ਉਹ ਜੇ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, मर भी ना जाने कोई भी आया तो मर भे ना जाने कोई। ये दोनों श्लोक आए हैं। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसे ऐसे मरने, ये तुसी दोनों पढ़ोगे। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर ना मरना हो, ऐसी कैसी। इस श्लोक नूं गुरु अमरदास जी ने खोलिया। महला तीजा, क्या जाना कि वह मरेंगे, कैसा मरना हो। ये गुरु अमरदास जी का बचन है, बिल्कुल नाल कबीर साहब दे कि किसी दे मन च शंका न रहे। ऐसी कैसी, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, पर दस दिता ऐसी कैसी जेकर साहिब ए वाली। वो नहीं विसरना चाहिए, एक निशाना उदा होना चाहिए। भावें जो मर्जी कारज करो, जीवन दे सारे कारज करो। इस करके असी आसा की वार दा ये बचन लिया सी, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत। सुचेत का मतलब सियाणप नहीं है। सुचेत गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च दो अर्थां विच आया। सुचेत पहला अर्थ अवेयरनैस, जानन की अवस्था च आया। दूसरा सुचेत आया चलाकियां नाल, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहते ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ये माया मोहनी जिन एत, इनू महाराज जी कहते गुरु नानक साहब, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने। जे तू बहुत सियाणा बनना ना, बड़ा चलाक बनना है, लै मैनू की लोड़ है। जेड़े दुखी लोग ने उही रब का नाम जपते हैं। मेरे को सब कुछ है, मेरे को सारे परिवार, पुत्र धियाँ पोतरे, कारोबार, फैक्ट्रियाँ, पैसा धेला, नौकर चाकर, मैनू की लोड़ है। अगे बचन चेते करियो, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुइए अंदर खेत। तुसी पंजाब विच जे जाओ तो तुहानू पता लगेगा, जिस वेले कपाह की खेती की जाती है ना, कपाह की खेती दे नाल तिल दे छिट्टे भी मार दिते जाते हैं। कपाह दे नाल तिल भी पा दिता जाता है, क्योंकि कपाह के मौसम दे विच तिल भी उगदा है। जद एक जमींदार कपाह की खेती करता है तो नाल तिल दे छिट्टे पाउंदा है। पर कई बारी जद वो किसान वेखदा, जद कपाह पक जाती है, तिल भी पकते हैं, तो कई तिल दे सिट्टे बाहरों बिल्कुल सड़ के राख होए होंदे ने, काले स्याह होए होंदे ने। तो जिहड़ा किसान हो जाता हुंदा वो समझ जाता है कि इन्हां दे अंदर दाना बीज सड़ चुका है। पर किसी किसान नूं पुछिया जाए, बई इनू पानी घट लाया, इनू तू नरमा घट पाया, इनू दवाई घट, इहदे छिड़का घट कीता, नहीं, इनू सब कुछ दिता। कपाह दे नाल जे कपाह नूं सब कुछ दिता तो इनू भी सब कुछ दिता, तो फिर इहदे अंदर बीज क्यों, ये सड़ गया अंदरों। बाहरों इनू सब कुछ मिलिया पर अंदरों ये सड़ गया। बंदा कहे मेरे को सब कुछ है, तो गुरु नानक साहब कहते रब तैनू सब कुछ दे रहा है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी फलियां फुलियां बपड़े भी तन विच, पर अंदरों तू सड़ गया। बाहरों सब कुछ मिलिया तू, बाहरों सब कुछ लिया तू। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेबा दिती बोले तात, जिन मन रखिया अग्नि पाए, ये सब कुछ है। गुरु रामदास जी का बचन, सब कुछ मिलिया कि वो देण वाला है। हर जियो पे सब पिंड नक मुख दिया, बर्तन को पानी, अन खाना कपड़ पहनन दिया, रस अन भोगाणी, जिन दिए सो चित ना आवे। जे ओदा चेता नहीं, फिर ये बचन रोज़ चेते करन वाला है। फलियां हैं फुलियां हैं बपड़े, सब कुछ मिलिया, सारा कुछ दिता रब ने। बाहरों बिल्कुल फले फुले लगते हैं, बड़े 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 लगते हैं, पर सच तो है उन्होंने चेते कीते तो बिना भी तन बिच सुहा, अंदर सुहा किया। गुरु अमरदास जी नूं बख्शिशां मिलियां। 12 साल सतगुरु जी सेवा करते हैं, तो 22 साल
72 साल की उम्र तो लैके 94 साल की उम्र तक 94 22 साल गुरु नानक साहब महाराज जी की गद्दी के मालिक बनते हैं। हुण ये जिहड़ा 22 सालों का सफ़र है आप संगतां दे नाल कल नूं अर्ज करांगे थोड़ा जा कि गुरु अमरदास जी की सहायता किवें लई जाए, किवें सतगुरु जी की जिहड़ी थोड़े बहुत गुरु अमरदास महाराज जी के बाबत भट्टां ने तो बहुत आख्या, पर जिन्ना समर्था सतगुरु ने बख्शी है वो थोड़ा विचार कि घन हर बूंद बसो रुमावल जां गुरु अमरदास परसी है पोहम पातक नासै, ये सारे बचन जां हथ तां पर सकियत हथ लग है गुर अमर पै, जां बाहज कर दहने सिद्ध सन्मुख मुख जो है, ये सारे जिहड़े बचन ने कि गुरु अमरदास जी की सहायता किवें लई जाए, ये बाणी विचों कल असी सरवण करांगे। आओ जी 2 मिनट असी सिमरन विच जुड़िए, फिर कथा की समाप्ति है। सारे करो मनोबिरतियाँ एकागर, अखां बंद करो ते रज के ते गज के जुबान तो पढ़ियो बोलियो ते कन्ना तो सुनियो। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਾਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦੇਵ ਸਰਾਧ ਵਿਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।